Hello students, today we are going to discuss some examples based on abnormal molar mass, right? These examples are based on abnormal molar mass. So first example is calculate osmotic pressure, that is pi, of a solution having 0.1 molar sodium chloride and 0.2 molar sodium sulfate and 0.5 molar HA, that is weak acid, and given that this weak acid is 20% dissociated at 300 Kelvin. तो हमें यहाँ पे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है फाइंड करना है सॉल्यूशंस का, और हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं. वन हैविंग द मोलैरिटी ऑफ 0.1, one having the molarity of 0.2 and other having the molarity 0.5 molar, right? And this weak acid, that is HA, it is dissociated at the rate 20%, right? So we have to calculate the osmotic pressure pi of overall solution, right? So how we have to find this osmotic pressure? So we will see the solution. As we know, osmotic pressure is equal to Van 't Hoff factor multiplied by CRT, right? This I is Van 't Hoff factor, this R is gas constant, T is temperature, and C is the concentration of the solution, right? Now we have different types of solutions, so total osmotic pressure will be given by osmotic pressure of the NaCl, osmotic pressure of sodium sulfate, and osmotic pressure of weak acid, right? So we have to find the osmotic pressure of sodium chloride. It will be given by Van 't Hoff factor multiplied by concentration of sodium chloride multiplied by R multiplied by T. Now we will show the dissociation of sodium chloride in aqueous, right? We will get Na positive aqueous and Cl negative aqueous because ions are in aqueous form, right? As we see here, there are 2 ions on dissociation of sodium chloride, so the N equivalent to 2, that is number of ions, and alpha equivalent to 1 for complete dissociation. We will assume this is being completely dissociated, so alpha equivalent to 1 for complete dissociation, right? Now we have the general expression, right, for Van 't Hoff factor I equivalent to 1 plus n minus 1 में alpha, right? So we will find I here equivalent to 1 plus n is 2 minus में 1 into alpha is also 1. Now I is equivalent to 2 for NaCl, right? Or alpha we can also write. For alpha we will write this formula in this way: alpha equivalent to I minus में 1 upon n minus 1, right? Now for osmotic pressure for NaCl, this is the value of I, right? This is the concentration of NaCl given in the question, and we will put RT as it is first of all, right? Now osmotic pressure of sodium sulfate, इसको कैसे लिखेंगे? Van 't Hoff factor concentration सोडियम सल्फेट का इनटू में RT ऐसे रखेंगे. तो Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है, इसका डिसोसिएशन जो है हम शो करेंगे सॉल्यूशन में. 2 टाइम्स सोडियम पॉजिटिव एंड सल्फेट हमको मिलेगा एक्वस फॉर्म में, राइट? आयंस को ऑलवेज जो है आपको एक्वस फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे टोटल आयंस हमको 2 प्लस में 1 मिल रहा है, तो 3 आयंस हमको टोटल मिल रहा है, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए 1 है. क्वेश्चन में जो है इसका डिसोसिएशन का परसेंट नहीं दिया है, तो हम जो है इसे 1 रखेंगे. तो आई इक्वलेंट टू डिसोसिएशन के लिए जो है ये एक्सप्रेशन हमको याद रखना है. आई इक्वलेंट टू 1 प्लस n माइनस में 1 अल्फ़ा. यहाँ से आप आई का वैल्यू जो है Van 't Hoff फैक्टर कैलकुलेट कीजिए. n जो है 3 माइनस 1, अल्फ़ा भी 1 है,
तो आई का वैल्यू 3 आ जाएगा सोडियम सल्फेट के लिए। जब आई का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया सोडियम सल्फेट के लिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे, आई का वैल्यू 3 आ गया, ये Na2SO4 का मोलैरिटी दिया हुआ है और RT एज इट इज़ हमने रख लिया। अब हम जो है वीक एसिड का ऑस्मोटिक प्रेशर देखेंगे, तो आई इंटू में कंसनट्रेशन वीक एसिड का इंटू में RT, राइट। तो HA दैट इज़ वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन शो करेंगे, तो इसका डिसोसिएशन क्या आ जाएगा, HA एक्वस में A नेगेटिव एक्वस में, और यहाँ पे भी ये एक्वस लिखा है। तो यहाँ पे 2 आयन जो हैं ये बताया गया है। अल्फ़ा जो है 1 के बराबर इक्वल नहीं होता है, जो वीक एसिड ये कम्प्लीटली डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो वीक एसिड के लिए अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे इस वीक एसिड के लिए जो है 20% बताया गया है, और 20% का मतलब है 20/100, जिसे हम 1/5 और 0.2 लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0.2 आ गया, राइट। तो वेंट ऑफ फैक्टर का एक्सप्रेशन लिखेंगे जनरल में 1 + n-1 में अल्फ़ा। तो यहाँ से आप जो है वैल्यूज़ पुट करें, n का वैल्यू 2 और अल्फ़ा का वैल्यू 0.2। तो ये सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो वेंट ऑफ फैक्टर है दैट इज़ 1.2। तो अब हम इसके लिए भी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर लिखेंगे, ये आई का वैल्यू आ गया, ये कंसनट्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में HA के लिए, और RT एज इट इज़ हमने लिख दिया, और ये 0.6 RT आ गया। अब क्या कर लेंगे, इंडिविजुअली इन तीनों को जो है हम यहाँ पे इकट्ठे में प्लस कर लेंगे। तो टोटल जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, तो ये सोडियम क्लोराइड का है, राइट। तो ये Na2SO4 का ऑस्मोटिक प्रेशर है, और ये जो है हमारे पास वीक एसिड HA का ऑस्मोटिक प्रेशर है। इन तीनों को क्या है हम प्लस कर लेंगे, RT और RT हमने कॉमन कर लिया और इन वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 1.4 RT आ रहा है। अब टेम्परेचर जो है 300 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर जो बताएंगे 1.4, और R का वैल्यू यहाँ पे 0.0821, राइट। ये वैल्यू जो है लीटर एटीएम कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स वाला वैल्यू है। तो जब इसको हम ओवरऑल जो है मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 34.482 जो है हमारे पास आंसर आएगा, और यहाँ पे हम यूनिट जो है एटीएम्स में बताएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन था 25। अब हम जो है एग्जाम्पल 26 देखते हैं। सबसे पहले हमको एग्जाम्पल रीड करना होगा कि 26th एग्जाम्पल क्या है। देखिए 26th एग्जाम्पल है कि इफ़ 0.04 मोलर सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज़ फाउंड टू बी आइसोटोनिक, राइट, विद 0.05 मोलर NaCl, और NaCl जो 100% डिसोसिएशन बता रहा है, ठीक है, सोल्यूशन में। तो हमें कहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए सोडियम सल्फेट का, राइट, और सोडियम सल्फेट का कोई भी जो है डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं बताया है, राइट, कितना होगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, और NaCl जो है 100% डिसोसिएशन बताया हुआ है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ आइसोटोनिक, मतलब ये दो सोल्यूशन जो हैं, फर्स्ट सोल्यूशन और ये सेकंड सोल्यूशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, आइसोटोनिक है। इस कंसेप्ट की बेसिस पे जो है हम इस एग्जाम्पल 26 को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमको जो है ये आइसोटोनिक सोल्यूशन पता होना चाहिए कि हैविंग सेम ऑस्मोटिक, दोनों सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन है, ठीक है, I × CRT, राइट, और I का वैल्यू यहाँ से 1 + n-1 अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और n का वैल्यू है नंबर ऑफ आयंस ऑन डिसोसिएशन। अब हम पाई Na2SO4 से जब लिखें ऑस्मोटिक प्रेशर, तो I × में कंसनट्रेशन Na2SO4 का इंटू में RT। तो Na2SO4 का डिसोसिएशन हमने पहले भी शो किया, 2 टाइम्स Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, एक्वस में आप यहाँ पे इसे लिखा करें, और ये भी जो है एक्वस में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने आगे, 3 आगे, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे हमने 1 जो है इसे बता दिया कंप्लीट डिसोसिएशन पे, राइट। तो वेंट ऑफ फैक्टर I = 1 + n की जगह 3 लिखा, -1 इंटू में अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास I का वैल्यू जो है दैट इज़ क्या आ रहा है हमारे पास, I = 1 + 2 अल्फ़ा जो है सोडियम सल्फेट के लिए आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप जो है अल्फ़ा का वैल्यू, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जब एक के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि 100% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसका हमें फाइंड करने के लिए बताया गया है क्वेश्चन में। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए अल्फ़ा = 1 जो है नहीं रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू भी पुट नहीं किया है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास सोडियम सल्फेट का होगा, तो ये I का वैल्यू लिख दिया हमने यहाँ से, जो जनरल एक्सप्रेशन से लाया, और ये मोलैरिटी क्वेश्चन में दिया है
राइट। कंसंट्रेशन जो है दिया हुआ है सोडियम सल्फेट का क्वेश्चन में, और RT हम एज इट इज लिखेंगे, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर NaCl का लिखेंगे, तो I NaCl का तो और कंसंट्रेशन NaCl का इंटू में RT। तो NaCl जब डिसोशिएट होगा तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो नंबर ऑफ आयन जो हैं दैट इज़ 2, और अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि ये 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो I इक्वल टू 1 + n-1 अल्फ़ा, ये फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ से I इक्वल टू 1 + n का वैल्यू 1 है, तो 1 × 1, राइट। तो ये कितना आ गया वैल्यू, 2 आ गया। तो पाई NaCl दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये I का वैल्यू और ये कंसंट्रेशन NaCl का दिया हुआ क्वेश्चन में, और RT एज इट इज़ रख दिया, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब जो है क्वेश्चन ने कहा था कि ये दोनों सोल्यूशन जो हैं ये आइसोटोनिक हैं, तो इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के बराबर होगी, राइट। हम सोडियम सल्फेट का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। हम दोनों इक्वेशन को जो है इक्वेट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे RT से RT कैंसिल हो गया, 1 + में 2 अल्फ़ा इंटू में 0.04, तो इक्वल टू 2 × 0.05। तो 1 + 2 अल्फ़ा पहले यहाँ से फाइंड करेंगे, तो 2 × 0.05 के डिवाइड में 0.04 आ जाएगा, और यहाँ से 1 + 2 अल्फ़ा जो है ये 2.5 के इक्वल आ गया। यहाँ से 2 अल्फ़ा फाइंड कीजिए, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू जो आ जाएगा 1.5, राइट। ये सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2, और ये 0.05 जो है हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आया। बट हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, तो राइट, तो हमें क्या करना है कि इसे जो है 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये 75% जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो जो Na2SO4 है ये 75% जो है डिसोशिएट हो रहा है। अब एग्जांपल 27 है, तो पहले हम एग्जांपल 27 को रीड करते हैं कि एग्जांपल 27 क्या है। एग्जांपल 27 में है कि इफ़ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज़ डिज़ोल्व्ड इन बेंजीन टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन एट 300 केल्विन, राइट। क्वेश्चन समझ में आ गया कि 6 ग्राम एसिटिक एसिड जो है बेंजीन में डिज़ोल्व किया जा रहा है, और क्या बन रहा है 300 केल्विन पे 1 लीटर सोल्यूशन बन रहा है ओवरऑल। ऑस्मोटिक प्रेशर जो सोल्यूशन का है इट इज़ फाउंड टू बी 1.64 atm, राइट। तो इफ़ इट इज़ नाउन दैट जो एसिटिक एसिड है ये बेंजीन के अंदर क्या बनाता है, डाइमर बनाता है, तो आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है फाइंड कीजिए एसिटिक एसिड के लिए बेंजीन में, राइट। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप अल्फ़ा डैश से रिप्रेजेंट करें या फिर आप बीटा से रिप्रेजेंट करें, राइट। अगर आप डिसोसिएशन को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप एसोसिएशन को बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए हमने आपको बताया है कि डाइमर कैसे, जैसे ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, और ये भी एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये क्या है एक बड़ा सा मॉलिक्यूल एक ही बन जाएगा, 2 का एक ही बन जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, डाइमर कहते हैं, राइट। तो अब देखिए जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल 27 देखिए बच्चे, एग्जाम्पल 27 में जो है हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि मोलैरिटी जो है एसिटिक एसिड का, हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे कि एसिटिक एसिड के कितने मोल हैं डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो अगर हम यहाँ मोलैरिटी लिखें तो हम मोल निकालेंगे एसिटिक एसिड के, तो वो गिवन मास बाय मोलर मास आ गया, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का है 1 लीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना 6 ग्राम एसिटिक एसिड, तो वो मास है तो उसको मोल में कन्वर्ट किया, राइट। तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड का मोलैरिटी है दैट इज़ 0.1 मोलर, तो मतलब ये कंसंट्रेशन का वैल्यू आपने 0.1 लेना होगा यहाँ पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए I इक्वल टू I इंटू में CRT, राइट। तो अब एसिटिक एसिड जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके डाइमर बनेगा, क्या बनेगा बच्चे, ये डाइमर बनेगा। तो यहाँ पे N का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, N का वैल्यू क्या है हमारे पास ये 2 है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसके लिए जो है वेंट ऑफ फैक्टर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 + 1/n-1 इंटू में बीटा, बीटा इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन हमने यहाँ पे रखा है। तो बीटा का मतलब जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, और n इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, राइट। तो यहाँ से वेंट ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू आप लिखेंगे 1 + में 1/2, राइट, 1/2 - 1 इंटू में बीटा, ये n का वैल्यू लिख दिया आपने, राइट। डिग्री ऑफ एसोसिएशन तो हमको फाइंड करना है,
तो ये वैल्यू जो है 1 प्लस हाफ में -1/2 इंटू में बीटा, तो यहाँ से वेंट ऑफ फैक्टर 1 माइनस बीटा/2 आ गया, राइट। अब हमने जो है पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.64 ATM, तो पाई इक्वल टू आई इंटू में CRT, फिर से इक्वेशन लिख दिया और पाई का वैल्यू पुट कर दिया, आई का वैल्यू भी पुट कर दिया 1 माइनस बीटा/2। ये कंसंट्रेशन हमने जो है 0.1 लेना है, जो हमने मोलैलिटी के फॉर्मूले से लाया। ये आर का वैल्यू लेना है क्योंकि ATM में यूनिट प्रेशर जो है, तो इसलिए आप 0.0821 यहाँ पे लेंगे और इंटू में टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इसको जो है आप 1 माइनस बीटा/2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 माइनस बीटा/2 बन जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा 1.64 यहाँ पे रह जाएगा। तो 2 माइनस बीटा इस 2 के मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, राइट, और डिवाइड बाई दिस। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है 0.6683 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ऑप्शन में अगर अलग वैल्यू रखी है तो 2/3 भी जो है इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, क्योंकि 2/3 को डिवाइड करके हमारे पास यही आता है। इसलिए जो हमारे पास बीटा है दैट इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट, दैट इज़ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, उसका वैल्यू जो है 0.6683 है। अगर इसको परसेंटेज में हमें लिखना है तो 0.66, राइट, 83 को आप क्या है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 66.83% जो है आ जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो इस तरीके से हमको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने आपके साथ जो है यहाँ पे कंपेंडियम का एग्जांपल जो है 25, 26 और 27 जो है डिस्कस किया है, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को आप जो है ध्यान से सुने। ओके, थैंक यू।